एबीसी बोलो, एबीसी देखा दे, एबीसी बोलो इसका ही अच्छा है। एबीसी वो इलास्टिक ये पूरा ऐसे मत बोलो। एबीसी आईडी আমরা জেনারেট করা काहे कर रहे একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট ডিজি লকারই তো পার্ট হ্যাঁ দেখা এবিসি আইডি এটা দিয়ে করতে एबीसी आईडी जनरेट एक आधार नंबर দিয়ে করলে সব এসে যায় না আমার কাছে আপনি কত মাধ্যমে কিছু মাধ্যমে কিছুই আসে না আপনার ডিজি লকার অ্যাকাউন্ট আছে আধার দিয়ে লিংক আছে তাহলে আপনি আলাদা লেভেল আমার আছে ওখানে তো এরকম অনলাইন সিস্টেম ছিল না ওই জন্য আমাদের টাইমে ছিল না এটা লগইন করলেই এসে যাবে অটোমেটিক্যালি না না যদি না আসলে অ্যাড করতে হবে ধরে ধরে অ্যাড করতে হবে अरे आशो ताড়াতাড়ি কি হলো वेट करिए सर देख सर बाल रेजिडेंट आज हम नहीं हम अभी सर रूल चेंज हो गया तो 20 रुपया हो गया और ये हो गया जो एक बार से ज्यादा फाइन दिया है उसका 50 रुपया फाइन ऑलरेडी तो ठीक है रोहित আসো सर जा नहीं रहे बैठे नहीं আরে তাড়াতাড়ি আসো ক্লাস আছে আমাদের ओ सर ওদেরকে একটু বলুন না আমি যাই সবাই তিনজনে স্যার প্লিজ আনমিউট করুন স্যার একটু ও আনমিউট মিউট করা আছে না তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো সুচরিতা চলে এসো রোহিত চলে এসো আর জিৎ চলে এসো তিনজনে রূপম ঘুরে কোথায় রূপম ঘুরে सर लास्ट में सिस्टम ही खराब हो जाएगा से চলে এসো আরে কি হলো চলে এসো সবাই একসাথে তো একসাথে আসো ফার্স্ট লেডিস ফার্স্ট বলে কোনো বস্তু এখন আজকের দিনে নেই हाथ निकालना প্রিয়াঙ্কাকে কিভাবে নিয়ে এসছো মেয়েটাকে নিয়ে এসছো আমি আসতে বেরোবার আসছিল আমি চক থাকতে দেরি হয়েছে চলো স্টার্ট করো Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Today my topic is motherboard. Morning ही तो बोल रहे ঠিক আছে ঠিক আছে অসুবিধা কন্টিনিউ করো ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে सर एक्चुअल में मेरी टाइमिंग में अरे यार ये अमेरिका लिखी इन लोगों को दोपहर में क्लास होता था ना 2 साल दोपहर में क्लास किया ना इसलिए वो हैबिट हो गया चलो Today my topic is a motherboard. वर्जीनिया रीजन में है ये यूएस वर्जीनिया यस सर सही बात बोले वही बोल रहा था चलो कंटिन्यू Why motherboard called is a motherboard? Motherboard because motherboard because it is a central port connected. বলো বলো মনে পড়ছে না অন্য লাইনে চলে যাও নেক্সট লাইনে চলে যাও মুখস্থ করলে এরকম হবে ভুলে যাবে নেক্সট লাইন তারপরের লাইন আরো তো আছে অনেক কিছু আছে মধ্যে বলতে পারো আমি যাবো হ্যাঁ
तो देख लो थोड़ा। अरे तो जो पढ़ी है उसको दे, जो भी वही देखिए उनके बयान तो करेंगे। कहाँ स्ट्राइक है? तो मेरा सेटिंग गलत बैठ। सबसे बड़ी बात होता है स्ट्राइक हम खुद ही हैं कॉन्फिडेंट। वो स्किप कर दोगे तो ग्लोबली ठीक আছে চলো It is a central connected port or all component connected and supported all parts. কিছুই তো বলছো না চলো প্রশ্ন করি আমরা मुझे अब এই পিছনে মুখ পিছনে तो ঘুমোচ্ছো নাকি मदरबोर्ड से क्वेश्चन करिए। তাহলে ফোন দেখে না স্যার ফোন দেখে স্যার বলছে 1 2 3 4 5 6 What is PCB? পিসিবি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড সার্কিট ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করছে না ও। তাহলে বলতো হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম পিসিবি ও জিজ্ঞেস কি করেছে হোয়াট ইজ পিসিবি পিসিবি क्या है পিসিবি কাকে বলে এটাই জিজ্ঞেস করছে नेक्स्ट क्वेश्चन Audio panel color and function. অডিও প্যানেলের কালার জিজ্ঞেস করছে আর ফাংশন জিজ্ঞেস করছে অডিও প্যানেল থাকে না যেখান থেকে আমরা না না কালার বলে তাহলে खूब इजी क्वेश्चन तो सर यही बता रहा ए क्यों बता रहे हो हाँ सुने सर क्या बोले দুটো কোশ্চেন কিন্তু জিরো হলো থার্ড কোশ্চেন What is chipset? व्हाट इज चीप सेट सस्ता सेट না ওই না CHIP देख ले ना What is motherboard? দুটো যেটা ফার্স্টে বললাম बोलो आप कैसे बोलो it is a connected all central components central connected all components supported Why motherboard is called motherboard? ये तो वो नहीं बोल पाई ना वैसे तो वो এই কোশ্চেনটাই তো সেমই কোশ্চেন আর কি What is GMC? হয়ে গেছে স্যার একটা কোশ্চেন বলে দিচ্ছে ওর একটা কোশ্চেন হয়ে গেছে क्या बोले যেটা আগে দিয়ে দিয়েছি আমি What is PCI slot? What are its functions? बस फंक्शन ही बता दे PCI স্লটটা কেন ইউজ করা হয় সেটাই জিজ্ঞেস করছি PCI এর ফুল ফর্ম কি ঠিক আছে পড়াশোনা করছো না বুঝলে? চল। চলে এসো। जीत ना जीत हालदार जीत हालदार गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग टू एवरीवन জোরে বলো জোরে কনফিডেন্স নেই কনফিডেন্সের খেলা পুরো এখানে गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग एवरीवन देन टुडे माय टॉपिक इज टोपोलॉजी
What is topology? The layout of the structure in a network is called as topology. Topology are two types: physical topology and logical topology. Physical topology, how devices are physically connected in a network, is called as physical topology, and logical topology, how devices are communicate of each other in a network, is called as logical topology. Topology are 6 types: bars topology, star topology, ring topology, mesh topology, hybrid topology, ring topology. চলো প্রশ্ন করি এবার আমরা। উইল আস্ক কোশ্চেন। বুঝছো? What is mesh topology? হ্যাঁ? What is mesh topology? মেশ টপোলজি। आंसर बोलो ना। पूछो। What is hybrid topology? Hello. नेक्स्ट क्वेश्चन। Start topology type. स्टार टोपोलॉजी टाइप्स। 2 types. पिंकी जिज्ञेस करो। What is bus topology? চলে এসো। সাইন করবে, এখানে সাইন করবে। চল। रोहित ना। Good afternoon, everyone. Good मॉर्निंग। अरे यार नहीं क्वेश्चन ऐसे फंबल कर सर इन लोग फॉरेनर है क्या सर? नहीं आया है, थोड़ा बाहर से आया हुआ है. So today's my topic is going to be hard disk. Hard disk is a secondary storage device that stores and that is used to store and retrieve data, large bits of data from magnetic devices. It is non-volatile in nature, unlike RAM. So data is not lost when the power is turned off. There are multiple moving components in a hard disk drive, like the platter, which is essentially used to primarily store the data on. It is magnetic in nature. Platter is made out of glass, ceramic, or metal. Voltage and non-voltage memory different क्या है? Voltage? वोल्टेज नहीं, वोलेटाइल। Non-volatile. So, volatile memory loses the data when the power is turned on, and non-volatile retains the data when the power is turned on. हार्ड डिस्क से ज़्यादा सॉलिड स्टेट ड्राइव क्यों रिलायबल है? It is better technology. Hard disks have movable parts, and it provides low amount of data storage compared to SSD, which is much compact and uses flash memory for storing data. ये तो है, इसका स्पीड भी तो मेजर होगा ना, दोनों का आपको स्पीड तो होगा, डिफरेंस इसलिए आता है, तो स्पीड बता दो। SSD is generally faster, but right at the moment I don't have the numbers on the top of my head. आशिक প্রশ্ন করো। আশিক কোথায়? অ্যাবসেন্ট নাকি আজকে? ম্যানুফ্যাকচারার প্রশ্ন করো। না স্যার, আছে স্যার। প্রশ্ন করো। हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चरर नाम बोलो। मैन्युफैक्चरर का नाम पूछना। কতগুলো নাম বলবে? একটা, দুটো, তিনটে?
5टा वो भी याद जो पता है याद नहीं है, क्या बोल रहे हो? सीगेट ऐसे तीनटे बोला था भाई, हैं? तीनटे बोलते बोलून सर। तीनटे তাহলে সিগারেট বলতে হবে না, বলে দিয়েছি। याद नहीं। तोशिबा है, WD है, इंटेल जैसा बनाता है? नहीं सैमसंग है सर। ठीक है। सत्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर ये भी होता है क्या काउंटिंग? 10। चलो उसका बोलो सत्य खड़े हो जाओ। सर ये मेरे को आइडिया ही नहीं था। अरे चलो आइडिया हो गया ना, चलो खड़े हो। बट सर मुझे नहीं बोलना सर हमको कुछ अरे खड़े होना है, नहीं खड़े हो आना है ना ऑफिस क्या। डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SSD। वो तो ये पूछा नहीं जा होगा, चुका है। ये तो बोल दिया। हाँ तो अभी तो वही पूछा दूसरा वो कहाँ पे? सर ये क्या सर, था? one to उसका one to one to presentation हम one. कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन दिमाग में ऐसे ही लेकिन होता है। वन गिनना स्टार्ट की चीज का ही तो टाइम है, तो नहीं पूछा। तू पूछ रही है ना 1 Why are we creating a partition? अरे रुक गया इसका भी वन फंक्शंस ऑफ हार्ड डिस्क। फंक्शन द मेन। क्या ये क्वेश्चन हुआ? हाँ सर मेरे मुंह में जो आया वो इसलिए हम पूछे तो सर। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरिंग डेटा। और कोई फंक्शन है क्या? हाँ और कोई फंक्शन है क्या? हाँ उसका फंक्शन है कि ये परमानेंटली डेटा स्टोर करता है। इट डेटा स्टोर के अलावा कोई इज नॉन वॉलेटाइल इन ये नेचर। क्वेश्चन है कुछ? सर और तो कोई फंक्शन टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। टाइप्स कैसे होते हैं? हाँ ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क तो है। हाँ, चुप से रह। हाँ टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क थोड़ा हार्ड अंदर से पूछना। तो साटा पाटा नहीं पड़ेगा। हाँ सर साटा साटा पढ़े हैं। चलो आप पूछ सकते थे। नहीं हो गया सर, पिछली बार मुझे मौका नहीं नहीं मालूम मिला था था। ना? नहीं मुझे मौका नहीं मिला था। मैं वहाँ पे था पिछली बार। मेरा क्वेश्चन पूछने का ठीक है, तो कोई और पूछ सकता है। 3 तो हो गया सर। ऐसा कुछ कोई काउंटिंग है क्या? सुचरिता को तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन पूछे। এমনি টাইমে তো প্রেজেন্টেশন না থাকলে আমার থেকে কোশ্চেন করে না হ্যাঁ। স্যার মনে প্রতিদিনের প্রেজেন্টেশন होएगा सर। हाँ। वो कोड़ा कोड़ी होएगा। व्हाट इज ट्रैक? Tracks are the logical partitions on the আরাম করে দাঁড়াও, এত নড়ছো কেন? वो अभी भागेगा पर भी बोलो ट्रैक। logical concentric on the platter there is logical concentric एक्सप्लेन कर रहा है उसी को ट्रैक कहते हैं जिस पे डेटा स्टोर किया जाता है। ट्रैक्स को सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। बंच ऑफ सेक्टर कैन बी मेंशन्ड एज क्लस्टर्स। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ये क्या ऑफलाइन है, कोई भी पूछ सकता है। हाँ बोलो, व्हाट इज लो लेवल फॉर्मेटिंग? व्हाट इज लो लेवल फॉर्मेटिंग? नहीं मालूम। हिडन बूट सीडी के बारे में कौन कौन जानता है? हिडन बूट सीडी ये बूटेबल सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग सिस्टम ट्रबल शूटिंग करने के यूज करते हैं। ये तो लास्ट में हार्ड डिस्क से सर स्टोरेज निकालने हाँ ये बैकअप अच्छा ये सॉफ्टवेयर है सर सॉफ्टवेयर हाँ इसे डाउनलोड करना पड़ता है। लैमिनेशन लोगों को तो पता है इसके बारे में। ठीक है चलो ভালো হয়েছে। लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। हो प्रीवियस डे हम लोग जो सीखे थे वो EFS सीखे थे। EFS के बारे में डिस्कस किए थे। आशिक स्क्रीन विजिबल আছে? यस सर। सर প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট ছিলেন স্যার अरे नहीं So previous day we have discussed about the EFS, है ना? और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखे थे। So it's a one type of storage that is like a NAS, like a NAS. NAS मतलब क्या होता है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क में स्टोरेज है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से। इस रीजन के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है। That is called EFS. EFS का फुल फॉर्म है। EFS का कुछ लिमिटेशंस है। कोई बताएगा क्या लिमिटेशन है EFS का?
कॉपी नहीं देख सकते। हेलो, कॉपी नहीं देखना है। सर आप ही तो बोले बताओ। हाँ, बताना है, कॉपी देखने के लिए बोला गया। बताना इक्वल टू कॉपी देखना थोड़ी होता है। ये EFS में कुछ लिमिटेशंस है ना? क्या लिमिटेशन है? कोई नहीं बोल पाएगा पूरा बैच। कॉपी नहीं देखना। हेलो सर पर बोलने नहीं पाएंगे इसलिए चैट करो उसके लिए। लिमिटेशन क्या है कि इसको हम लोग सिर्फ लिनक्स मशीन में यूज कर सकते हैं या फिर मैक का सिस्टम में यूज कर सकते हैं। वी कांट यूज दिस EFS इन अ विंडोज मशीन। विंडोज मशीन में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन यही है। क्लियर? आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नो अबाउट अनदर स्टोरेज टाइप दैट इज यूज्ड इन AWS व्हिच इज कॉल्ड EBS। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है? EBS है। आशिक म्यूट करो ना। तो EBS के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? सबके लिए विजिबल है क्या ये? यस सर। हाँ, सो ये आपका EBS के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग पहले जान लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट लिख लो पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हो गया, लिख लिया, डन। EBS का फुल फॉर्म है। স্যার স্ক্রিনটা ভিজিবল নেই স্যার, দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না স্যার। দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। कोई ओवरराइड कर दे। এবার দেখা যাচ্ছে? না স্যার। सर वो रीजॉइन करेगा तो उसको दिखेगा। আমি তো শেয়ার করেছি না, শেয়ার হচ্ছে না। सर एंटायर स्क्रीन कीजिए तो अब सो দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, তুমি ক্লাসের পরে না প্রিয়াঙ্কা একবার অ্যাকাউন্টস থেকে দেখা করে নেবে। আই থিঙ্ক তোমার ওইদিকে ড্রপ আউট দেখাচ্ছে। ब्लॉक स्टोरेज ये बता रहा है। S3 हमारा जो था वो ब्लॉक स्टोरेज नहीं था, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज लेवल स्टोरेज। और ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक बना के ये डेटा को स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। हो गया डन? सबका हो गया? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? एनीवन? It is persistent in nature, means it is a
available even after restart. अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये रीस्टार्ट के बाद ये डेटा लूज नहीं करता है, ये डेटा रिटेन करके रखता है परसिस्टेंट। तो ये वॉल्यूम में जो डेटा रखोगे, इट्स वन टाइप ऑफ वॉल्यूम। जैसे बनाते हैं ना हमारे कंप्यूटर में पार्टीशन बनाते हैं, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो उस तरह से ये भी एक वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम इंस्टेंस के साथ अटैच होता है। इंस्टेंस मतलब कंप्यूटर जो वहाँ पे आप यूज़ करते हो, मशीन जो बनाते हो, वो विंडोज़ मशीन हो, वो लिनक्स का मशीन हो, वो मैक का मशीन हो, कोई भी मशीन हो, आप EBS वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो। तो आप अगर इंस्टेंस को शट डाउन कर देते हो या इंस्टेंट को रीस्टार्ट करते हो, तो ये आपका EBS वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप इंस्टेंस को डिलीट कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट EBS भी डिलीट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैं बताऊँ, वो भी ऑप्शन हमारे पास है। मैं चाहता हूँ कि नहीं डिलीट नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, सर अगर तो डेटा लॉस हो नेटवर्क से जाएगा। अटैच रहेगा तो रीस्टार्ट होने के बाद डिलीट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट होगा। मैं अगर चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ कि ना, मैं नहीं करना चाहता डिलीट, तो डिलीट नहीं होगा। वो भी ऑप्शन हमारे पास है। जब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो वहाँ पे येस नो का भी ऑप्शन आता है कि आपको क्या करना है। इंस्टेंस बंद करोगे तो क्या इसको टर्मिनेट करना है, डिलीट करना है, क्योंकि इसका बिलिंग आएगा ना। पता चला कि आप इंस्टेंस डिलीट कर दिए लेकिन आपका EBS रह गया। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि नहीं, मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा डेटा रखा है, मेरा EBS डिलीट ना हो, भले इंस्टेंस डिलीट हो जाए, तो वो भी कर सकते हो कि नहीं, आप EBS को रखो, भले टर्म में आपका टर्मिनेट हो जाए इंस्टेंस या डिलीट हो जाए इंस्टेंस। तो वो ऑप्शन हमारे पास है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कैसे इसको इनेबल करना होता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टेंस डिलीट होने से EBS वॉल्यूम भी आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया क्या? अगर इसी जो क्रिएट करते हो डिलीट होने से समझ में एक आया? फिर से इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं हाँ। और उसमें EBS अटैच्ड है। जैसे हम इंस्टेंस डिलीट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट EBS भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर रीस्टार्ट करते हो उस इंस्टेंस को या स्टॉप करते हो इंस्टेंस को, तो डिलीट नहीं होगा। बिकॉज वो नेटवर्क से अभी भी अटैच्ड है ना। कब डिलीट होगा? जब आप टर्मिनेट करोगे, टर्मिनेट एंड डिलीट, तभी डिलीट होगा वो। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है? सेकंड पॉइंट It is not connected to the rather it is a network attached storage. यस, सो EBS इज नॉट लाइक नॉर्मल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। ये नेटवर्क में है और ये कंप्यूटर है और ये इस तरह से अटैच है। फिजिकली कंप्यूटर के अंदर नहीं है, जैसे फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क है, ऐसा स्टोरेज ये नहीं है। ये हार्ड डिस्क कहीं और है और ये मशीन कहीं और है और इसको कनेक्टेड किया गया है। सो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज ये नहीं है। इट्स नॉट अ डैश, इट्स अ NAS, इट्स अ टाइप ऑफ NAS। डैश का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, और NAS का फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये किस तरह का वॉल्यूम है या स्टोरेज है? ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। ओके, हाँ, तो ये दो तरह का हो सकता है EBS। क्या क्या? एक हो सकता है नॉर्मल EBS और दूसरा हो सकता है इंस्टेंस स्टोरेज। तो हम लोग पहले आप बात कर लेते हैं इंस्टेंस स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंस्टेंस स्टोरेज क्या है। इंस्टेंस मतलब आपका मशीन, मशीन का स्टोरेज। अच्छा, ये हम लोग लिख लेते हैं ना पहले। तो ये हमारा इंस्टेंस स्टोरेज का फीचर्स है। ये तो इसको नीचे ही कर लेता हूँ, आई थिंक सबके लिए आसान होगा। ये ग्रे नहीं है, ब्लैक ही है, बट ये सिर्फ बोल्ड नहीं किया हुआ है। इसको बोल्ड करेंगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, कलर ब्लैक ही था। सो इंस्टेंस स्टोरेज बैक्ड EC2 इस तरह से नाम आता है। ये आपका हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। ये भी एक तरह का EBS ही है, लेकिन किस तरह का EBS है? इंस्टेंस EBS है, इंस्टेंस स्टोरेज है, जो इंस्टेंस के साथ ही रहेगा।
डन हो गया। ना सर डन। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। सैटरडे तुम लोगों का मैं ये प्रैक्टिकल क्लास में दूंगा, ठीक है? तो बाकी का प्रैक्टिकल जो रह गया है वो सब कर लेना। इसका पेंडिंग प्रैक्टिकल सब स्त्री का प्रैक्टिकल बाकी होगा सब। स्त्री का ही बाकी है सर थोड़ा। और ये फिस का होता है। अच्छा स्त्री और ईफिस में क्या डिफरेंस है? लिख लिया ना? हाँ S3 ऑब्जेक्ट लेवल का है। हाँ। और जो स्त्री आपका ऑब्जेक्ट लेवल का है, यस। और जो आपका ये क्या EFS के बारे में बोले वो एक लिनक्स पर ही बेस्ड है। मतलब EFS हम इम्प्लीमेंट सिर्फ लिनक्स में ही कर सकते हैं, पर वेयर एज S3 हम इम्प्लीमेंट सब पर कर सकते हैं। और कोई डिफरेंस? ये सर एक मेजर डिफरेंस है सर। और S3 को एक्सेस करने के लिए कोई इंस्टेंस हमको ऑन नहीं करना पड़ता। हाँ सर, बट EFS के लिए मुझे एक लिनक्स का मशीन बनाना होगा, वहाँ से एक्सेस करना होगा। उसी से एक्सेस होगा। बाय 2 कमांड्स yum and लेकिन S3 को आप डायरेक्ट विदाउट मशीन आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। S3 तो सर बकेट है। S3 बकेट का हाल जो मिलता है कभी चलेगा? सर 9 ना नंबर नंबर ऊपर की वाला ना वाला। फिर आप आगे पीछे जाते हैं। यहाँ से ना नंबर 6 पॉइंट्स एक्चुअली EBS के बारे में लिखा है, ठीक है? ये अगर देखोगे ये सब EBS के बारे में EBS का फीचर है ये, ओके? और 5 तक तुम्हारा है इंस्टेंस स्टोरेज का फीचर। थोड़ा सा उसको अलग ही कर लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इसके बारे में है।
EBS दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल EBS या फिर इंस्टेंस स्टोरेज हो सकता है। तो 1 से लेकर 5 तक जो फीचर है वो इंस्टेंस स्टोरेज का फीचर है, और 6 से लेकर 11 तक जो फीचर है वो EBS के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं लिख दूंगा तो अच्छा रहेगा। पहले लिख तो रखना है, बाकी नहीं। यहाँ से आपका जो है वो आपका इसके बारे में है, EBS के बारे में। ये आपका EBS के बारे में बताया गया। हो गया, डन। EBS के बारे में 6 से लेकर 11 अच्छा, नंबर 1 पॉइंट लिख लिया ना? नंबर 1 पॉइंट में आप देख सकते हो क्या लिखा है कि इंस्टेंट स्टोरेज, या फिर कहीं भी अगर बैक लिखा हुआ है ना, कोई स्टोरेज में अगर बैक लिखा हुआ है, किसी तरह का स्टोरेज हो, वहाँ पे अगर बैक मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब वो वॉल्यूम या फिर वो स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, दैट इज अ रूट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, या आपका रूट वॉल्यूम है या बूट वॉल्यूम है। रूट बोलो या बूट बोलो एक ही बात है, मतलब जहाँ से आपका OS बूट करेगा वही वॉल्यूम ये है। इसको अगर डिलीट कर दिए तो आपका OS भी गया, मशीन भी गया। तो इंस्टेंस स्टोरेज प्योर बूट वॉल्यूम है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा। इंस्टेंस स्टोरेज बूट वॉल्यूम है, ठीक, जहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, आपका सी ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कंप्यूटर में, ये फिजिकल मशीन में, इस फिजिकल सिस्टम में आप आओगे तो यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स है, भले वो लाल पीला हो गया हो, लेकिन ये आपका जहाँ पे विंडोज़ का लोगो आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये आपका सिस्टम ड्राइव है, जहाँ से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये यहाँ पे इंस्टेंस स्टोरेज वही वॉल्यूम है, मतलब वो उसी में आपको जो फिजिकल मिलेगा वहीं पे OS हाँ, रन है। ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंस्टेंस स्टोरेज हमेशा अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा सिस्टम के साथ। मतलब आपका अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर ही वो वॉल्यूम रहेगा, बाहर कहीं पे नहीं। ठीक है, ये काफ़ी कम इंस्टेंस में होता है ऐसा, और ज़्यादातर पेड इंस्टेंस जो है उसमें ये इस तरह का वॉल्यूम होता है और काफ़ी फास्ट होता है ये, और इसका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस भी है। इसलिए हम लोग जो इंस्टेंस बनाएंगे उसमें इस तरह का स्टोरेज नहीं मिलेगा आपको। अगर हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिलिंग आएगा। ठीक है, হ্যাঁ, এখানে তো 2 রকমের বিলিং হয়। স্টোরেজের ক্ষেত্রে 2 রকমের বিলিং হয়, একটা হচ্ছে তুমি স্টোরেজটা ইউজ করছো তার বিলিং হবে, আর ডেটা ট্রান্সফার করছো ওটারও বিলিং হবে। ধরো ডেটা আমি কপি করলাম, আবার ওটা অ্যাক্সেস করলাম, ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে তো তারও বিলিং জেনারেট হবে। তুমি গাড়ি কিনেছো, তার তো টাকা লেগেছে, এবং গাড়ি চালাচ্ছো, তেল লাগছে, তো তেলের টাকাও দিতে হচ্ছে। Okay, so it's not a physical hard disk, it's a virtual hard disk। तो AWS में जो भी हार्ड डिस्क वहाँ पे है आपके लिए, जो मशीन्स क्रिएट हो रहा है सब वर्चुअल मशीन ही है, वर्चुअल, सारा कुछ वर्चुअल ही हो रहा है। हाँ, फिजिकल के ऊपर ही है, डेटा सेंटर वहाँ पे है, उसी में हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो क्रिएट हो रहा है वो वर्चुअल है। आपके लिए फिजिकल वहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है। फिजिकल सिर्फ आपके लिए एक ही चीज़ हो रहा है, यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए हुआ है स्नोबॉल। यस सर, ये स्नोबॉल आपको ह्यूज अमाउंट का डाटा उसमें, हाँ, जिसको आप नेटवर्क से ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर ट्रांसफर करोगे तो आज ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे 2026 में खत्म होगा।
1 TB का डेटा आपका है। অনেক নেয় स्नोबॉल के बारे में हम पहले ही बात की है। हाँ सर स्टार्टिंग जब स्टोरेज में बता रहे थे। अच्छा, इसका कुछ लिमिटेशंस है, इसमें आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 10 GB, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा ज़्यादातर। इसको ज़्यादातर लिनक्स इंस्टेंस में यूज़ किया जाता है, विंडोज़ के लिए काफ़ी कम यूज़ होगा इस तरह का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें एक आपका मेंशन है एक चीज़, जो चीज़ किसी में भी नहीं है, किसी भी स्टोरेज में नहीं है, कि ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो वॉल्यूम नॉन परसिस्टेंस है या फिर इफीमेरल वॉल्यूम है। नॉन परसिस्टेंस मतलब अगर सिस्टम शट डाउन हो गया तो आपका डेटा भी इसके अंदर जो है वो डिलीट हो जाएगा, बट EBS में ऐसा नहीं था क्या? यहाँ पे तो टर्मिनेट दूर की बात है, टर्मिनेट करेगा तो डिलीट होगा ही, लेकिन सिस्टम को अगर शट डाउन कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो आपका उस वॉल्यूम के अंदर जो डेटा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये सिस्टम ऑन होना चाहिए हमेशा, या फिर सिस्टम आप रीस्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट होगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा। बैकअप नहीं रखते पारो चल दिन क्लियर। तो ये नॉन परसिस्टेंस है, लेकिन EBS क्या था? परसिस्टेंस वॉल्यूम था, और ये क्या है? नॉन परसिस्टेंस है। नॉन परसिस्टेंस मतलब क्या होता है कि सिस्टम अगर शट डाउन हो गया, सिस्टम स्टॉप हो गया, सिस्टम टर्मिनेट हो गया, तो आपको डेटा वापस हाँ वही नॉन वोलेटाइल है, तो मेरे को लग रहा है। नहीं, रैम अगर होता तो रीस्टार्ट करने से रैम में नहीं रहता। हाँ, उसमें रीस्टार्ट करने से भी हट जाता है। तो रैम नहीं है इसमें, सो इट्स नॉट अ वोलेटाइल, ये है परमानेंट स्टोरेज, बट परसिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। क्लियर? इसका मतलब ये डेटा स्टोरेज के लिए है ही नहीं। इसमें क्या रहेगा? OS का जरूरत कब? जब सिस्टम चलेगा। जब चलेगा ही नहीं तो सिस्टम में OS का क्या काम है? यूज को समझो ना इसका। अगर आपको डेटा परमानेंटली कहीं पे रखना है तो सबसे बेस्ट है S3 यूज करो, इसके अलावा आप EFS यूज करो। आपको और ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करना रहेगा तो आप EBS यूज करो। जितना फ्रीक्वेंट डेटा यूज करोगे उतना ज्यादा बिलिंग आएगा। वैसे भी इसका नाम से इंस्टेंस स्टोरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन मकसद है OS का, है ना, इसलिए इसको इस तरह का फीचर रखा गया है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंस्टेंस स्टोरेज, इंस्टेंस बैक्ड स्टोरेज। अगर बैक्ड वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या रहेगा आपका? बैक्ड मतलब क्या होता है? OS रहेगा सर। OS रहेगा। क्लियर? अगर EBS में भी बैक लिखा हुआ है तो वो EBS किसके लिए रखा गया है? बनाया गया OS के लिए। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं EBS का फीचर। EBS का फीचर क्या है? EBS एक ऐसा वॉल्यूम है जो वॉल्यूम पूरा ही अनफॉर्मेटेड वॉल्यूम है। रॉ मतलब क्या होता है? अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे किसी तरह का फाइल सिस्टम डिफाइन किया हुआ नहीं है, ये NTFS में होगा या FAT में होगा या NFS में होगा, ये तो आप डिफाइन करोगे यूज करने के टाइम। तो ये रॉ रहेगा आपके लिए, रॉ वॉल्यूम रहेगा, लिखा रहेगा अनएलोकेटेड स्पेस, आपको फॉर्मेट करना है तब आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो ये EBS वॉल्यूम फर्स्ट टाइम आपके लिए रॉ ही रहेगा, और ये एक तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज होगा दैट कैन बी अटैच्ड टू आवर स्टोरेज। ठीक है, सुफियान क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ जी सुफियान जी बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 12 बजे ना, ठीक है ठीक है। मैं आप क्या मेल पे किए हो या फिर व्हाट्सएप में दे दिए हो? ठीक है, बढ़िया किया, व्हाट्सएप में उसको भेज दो। ठीक है, एक गायत्री को जरा फोन लगाओ, गायत्री को कार बेचे लगाओ, और आज के एग्जाम আছে পিডি ভাইবা ও আগের বারে দিয়েছিল? হ্যাঁ স্যার দিয়েছিল স্যার, কিন্তু মানে পারছিল না বলে বললো তুমি একটু পড়ে আসো, তোমারটা পড়ে নাও। না ওটা পিডি ভাইবা নয়, পিডি ভাইবা স্যার ও দিয়েছিল।
ভিডিওভাবে দিয়েছিল কিন্তু ওর মার্কস ওখানে কিছু দেখাচ্ছে না। একটু ফোন লাগিয়ে দাও তো, ওর সাথে আমি কথা বলে দিতাম আমি, গায়ত্রী। तो इंस्टेंस स्टोरेज आपका कैसा रहेगा? आपका जो इंस्टेंस है ये आपका इंस्टेंस के अंदर ही आपका स्टोरेज होगा और इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सो इफ इट इज EC2 इंस्टेंस, तो EC2 इंस्टेंस के अंदर ही आपका स्टोरेज है। सो दैट इज योर स्टोरेज, so that is called instance storage. बट ABS क्या है? ABS हो सकता है कि उसी रीजन के अंदर, उसी एजेट के अंदर एक स्टोरेज है नेटवर्क में। हाँ, ये EBS है। और आप अगर चाहो तो इस EBS को इस सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज अलग से दिखेगा, अलग से एक हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखेगा। इस हार्ड डिस्क को आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो डेटा रखोगे वो कहाँ पे जाएगा? आपका EBS पे जाएगा। क्लियर? तो दैट इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज। হ্যালো গায়ত্রী, 12টা থেকে আমি তোমাকে লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, জুম লিংক হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ, তুমি জয়েন করে দিয়ে দিও। তুমি একবার আমাকে হাই পাঠাও তো হোয়াটসঅ্যাপে, আমি তাহলে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ओके, सो EBS सबके लिए क्लियर है? EBS कहाँ पे रहेगा? EBS किसी इंस्टेंस के साथ नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि इस रीजन के अंदर, इसी एजेट के अंदर आपका कहीं भी हो सकता है। मल्टीपल EBS हो सकता है, आप बना सकते हो मल्टीपल EBS। सो दीज आर द स्टोरेज। यहाँ पे 10 GB का है, यहाँ पे 5 GB का है, यहाँ पे 100 GB का है। सर 100 GB कैसे? 25 हाँ, ले सकते हैं आप। सर तो पैसा नहीं अभी दोगे सब कुछ फ्री में चाहिए। तो ये रहेगा, ये इंडिविजुअल है। अब इसको अटैच करोगे तभी ये इंस्टेंस में ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। झूठे ना ले, है ना? 10 EBS क्रिएट करेंगे, 10 GB का। क्लियर? सो ये किस तरह का डेटा स्टोरेज करता है? ये ब्लॉक लेवल है ना, ये सब ब्लॉक लेवल करता है, जबकि S3 क्या था? वो ऑब्जेक्ट लेवल पे करता है। ये उन यूजर के लिए सुटेबल है जो डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब हाँ, रोज का काम है, उसको डेटा एक्सेस करना है, डेटा राइट करना है, डेटा रीड करना है, डेटा सेव करना है, हमेशा यूज कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो उन लोगों के लिए EBS है, क्योंकि इसका चार्जेस ज्यादा है S3 के मुकाबले, है ना? जबकि S3 ग्लेशियर वगैरह का इनफ्रीक्वेंट यूज है। ये डेटा आप कभी कदार यूज करते होगे, रख दिए, आपको आगे चल के लगेगा हो सकता है, अभी फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते। तो EBS वॉल्यूम हम तब बनाएंगे और डेटा हम उसमें तब रखेंगे जब उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हो तो आपके लिए EBS सुटेबल नहीं है, बिकॉज आपका बिलिंग काफी ज्यादा आएगा, है ना? जीवन बाबू को समझिए। ये हमेशा अटैच होगा कैसे? नेटवर्क, है ना? और ये हमेशा इसको यूज करने के लिए आपको एक कोई ना कोई EC2 इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा। विदाउट EC2 इंस्टेंस आप EBS वॉल्यूम को यूज नहीं कर सकते, जबकि S3 पैकेट को आप विदाउट EC2 इंस्टेंस यूज कर सकते थे ना? उसके लिए हमको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना नहीं पड़ता था, लेकिन EBS के लिए मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा, वो लिनक्स हो या फिर विंडोज हो, जो भी। क्लियर? एक EBS वॉल्यूम अटैच सिर्फ 1 EC2 इंस्टेंस से हो सकता है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे आप प्रीवियस क्लास में EFS किए थे कि EFS दो सिस्टम से कनेक्ट कर दिए और दोनों सिस्टम एक साथ एक्सेस कर रहा था, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। एक अगर EBS आपके पास है तो एट अ टाइम ये EBS सिर्फ इसी इंस्टेंस से कनेक्ट होगा। दूसरा इंस्टेंस आप बनाए भी हो, सो इफ दैट इज EC2 इंस्टेंस, आप इसके साथ सेम टाइम में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? अलग ही कर सकते हैं ना?
नहीं, एट अ टाइम नहीं कर सकते। एट अ टाइम नहीं कर सकते मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये यूज हो रहा है यहाँ पे, ये अगर अटैच है तो ये फिर इसमें अटैच नहीं होगा, इसको फिर क्या करना पड़ेगा? डिटैच करना पड़ेगा, तब आप इसको अटैच कर सकते हो। इसका मतलब एट अ टाइम एक से ज्यादा इंस्टेंस में। यस, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि एबीएस वॉल्यूम को आप ओनली वन EC2 इंस्टेंस को एट अ टाइम यूज कर सकते हो। EC2 और EBS मस्ट बी इन सेम एजेड, ये पॉइंट शुड बी नोटेड प्रॉपरली। ये हम लोग कभी कभी गलती से मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग EC2 बनाते हैं किसी और एजेड में और EBS बनाते हैं किसी और एजेड में, और हम लोग कनेक्ट करेंगे तो बोलेगा कि कनेक्ट नहीं होगा, बट दिखेगा नहीं आपको EBS, तो फिर बोलेगा प्रैक्टिकल आपका नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम क्या हुआ? क्योंकि हम लोग सेम एजेड में क्रिएट नहीं किए। एजेड, रीजन, ये सबको पता है क्या होता है? रीजन के अंदर एजेड होता है या एजेड के अंदर रीजन होता है? रीजन के अंदर एजेड होता है। यस, तो रीजन के अंदर एजेड होता है। आपका ये रीजन अगर मुंबई का है, इस मुंबई रीजन में 3 एजेड होगा, है ना? एक होगा आपका समझ लो 1A, एक होगा आपका 1B और एक होगा 1C, इस तरह से ही नाम होता है एजेड का। क्लियर? तो अगर आप EC2 इंस्टेंस 1C में बनाए हो और EBS बनाए हो 1B में, तो इस EBS को आप इसके साथ अटैच नहीं कर पाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। अगर ये EBS आपका 1C में बना हुआ है और ये EBS आपका 1A में बना हुआ है, तो इसमें से कौन सा EBS इस इंस्टेंस से कनेक्ट होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से वापस करते हैं क्वेश्चन। मेरा ये रीजन मुंबई है, इस मुंबई रीजन में मेरा 3 एजेड है, 3 डेटा सेंटर है। एक एजेड ए में है, एक एजेड ए है डेटा सेंटर, एजेड बी है डेटा सेंटर और एजेड सी है। मैं 3 EBS वॉल्यूम बनाया हूँ, एक 1B में बनाया हूँ 10 GB का, और एक 1C में बनाया हूँ 5 GB का, और एक 1A में बनाया हूँ तुम्हारा 100 GB का। मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाया जो 1C में है। कहाँ पे है? अभी मैं इस इंस्टेंस से EBS को अटैच करना चाहता हूँ। कौन सा EBS को मैं अटैच कर सकता हूँ और कौन सा सर 1C सर 1C अटैच कर सकता हूँ सर। ठीक बोलो, क्या नाम? 5 GB ऐसे बोलो, टाइम बोलो। रोहित बोलो। सी, क्या नाम? अभी इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इसमें। प्रॉब्लम यहाँ पे सेम एजेड है सर, सेम एजेड। क्या बोल रहा है? इस लाइन को ठीक से पढ़ो। जी, लाइन पे पढ़ो जोरे जोरे। ओ अच्छा, EBS might be same as এর মানে কি? মেমোরির মধ্যে আছে অ্যাবিলিটি জোন সেম থাকতে হবে, মানে EBS টাও সেম অ্যাবিলিটি জোনে থাকতে হবে আর EC2 সেম इंस्टेंसটাও সেম অ্যাবিলিটি জোনে থাকতে হবে, তবে কি তুমি অ্যাটাচ করতে পারবে। चेंज करना होगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले लेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 1C में है, ये एबिलिटी जोन है। यहाँ पे 1C में कौन है? ये है, 5 GB वाला। इसलिए कनेक्ट होगा। ये तो 1B में है, कहाँ से कनेक्ट होगा? ये तो 1A में है, कनेक्ट होगा। ওটা কত জিবি আছে ওর উপর ডিপেন্ড করে না, ওটা ডিপেন্ড করে কি সেম এবিলিটি জোনের মধ্যে আছে কি না। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? বুঝতে পারছো? इस तरह का क्वेश्चन ही पूछ सकता है कोई कि मेरा EBS अगर एजेड 1 में है, सॉरी A में है, और मेरा EBS अगर B में है, तो मैं क्या उसको अटैच कर पाऊंगा? सिंपल आंसर होगा नहीं, अटैच नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? दोनों को सेम एबिलिटी जोन में होना चाहिए।
ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कोई कि मेरा एक और रीजन है, सो दैट इज रीजन जो है वो है हमारा टोक्यो रीजन। इस टोक्यो रीजन में मैं एक ईबीएस बनाया हूँ। इस टोक्यो रीजन में एक तुम्हारा ये रीजन टोक्यो है, और ये जो ईबीएस मैं बनाया हूँ, ये ईबीएस आपका 100 GB का ईबीएस है, और इसको हम लोग रखे हैं AZ1C में। तो ये ईबीएस को क्या हम इस C2 इंस्टेंस जो मेरा मुंबई में बना हुआ है 1C के अंदर, उसको कनेक्ट कर पाएंगे? नो सर, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रीजन बेस्ड है सर। कौन कौन बोलता है कनेक्ट नहीं होगा? हैंड्स अप करो। नहीं होगा, हैंड्स अप करो। जोरे ए वाले हैंड्स अप बोले, ए वाले वहां पे, अदरवाइज डाउन था। तुम्हारा हाथ पकड़ो, हाँ नीचे। अच्छा, तो ये बोलছো হবে? কোশ্চেনটা পড়ে দাও, ভালো করে বুঝিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলো, আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা শুনছো না কি? কোথায় ব্যস্ত আছো তোমরা? কোনো প্রেমে পড়েছো নাকি? বলো বলো, টোকিওতে ওইদিকে ঘুরে বলো, ওদেরকে বোঝাতে হবে। টোকিওতে আমাদের এবিলিটি জোনটা 100 GB তে বানানো হয়েছে, ওটা 1C তে, আর চেঞ্জ এইদিকে মুম্বাই রিজনের মধ্যে 1C তে কি ট্রান্সফার করা যাবে? কারেক্ট কি হবে? तो आज ही इंडिया है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम किधर? हाँ, तुम किधर हो? तो नहीं होगा सर, तुम तो हाथ नहीं उठाए। हाँ, ये हाथ नहीं उठाया तो सर एक बार ऐसे 5-6 क्वेश्चन करवा दीजिए बीच में। हाँ, तो ये सिंपल है, कनेक्ट नहीं होगा। जबकि सेम रीजन के अंदर जब से डिफरेंट एबिलिटी जोन में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो डिफरेंट रीजन में कहाँ से होगा? सिंपल सा बात है कि नहीं? हाँ, नहीं होगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा आइडिया। आगे का थ्योरी पोर्शन हम लोग जो है नेक्स्ट डे करेंगे कि ईबीएस वॉल्यूम टाइप्स क्या क्या है। जैसे देख सकते हो अलग अलग टाइप्स का ईबीएस वॉल्यूम है। यहाँ पे एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, जनरल पर्पस एसएसडी है, प्रोविजन आयोप्स है, ये सब टाइप्स है। थ्रूपुट्स हार्ड डिस्क है, कोल्ड हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे और इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं छोटा सा। सो नाउ आवर सिनारियो इज दैट कि मेरा एक EC2 इंस्टेंस मैं क्रिएट करूंगा। ओके, ये EC2 इंस्टेंस मैं क्रिएट करूंगा। ये रीजन मेरा जो है वो समझ लो वर्जीनिया रीजन में है, वर्जीनिया। और ये आपका एजेड जो है, इसका एजेड है हमारा समझ लो 1C। सो 1C में मेरा EC2 इंस्टेंस है। मैं यहाँ पे एक सर्वर बनाया हूँ, विंडोज सर्वर 2022, ठीक है। और मैं एक EBS बनाया हूँ, EBS वॉल्यूम। ये EBS वॉल्यूम को अगर मुझे कनेक्ट करना है इसमें, तो मुझे इस EBS को कहाँ पे बनाना पड़ेगा? तो ये 10 GB का मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसका एजेड क्या होना चाहिए? 1C होना चाहिए, बिकॉज मेरा EC2 भी 1C में है। कौन है क्या बोल रहे हैं? इसी प्रैक्टिकल को हम लोग अभी करने वाले हैं, और फिर इसको चेक करते हैं कि EC2 इंस्टेंस में इसको कैसे अटैच करते हैं, कैसे यूज करते हैं। क्लियर? एज एक्सटर्नल ड्राइव। EBS कैन बी यूज्ड फॉर बूट वॉल्यूम ऑल्सो। EBS को बूट वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टेंस वॉल्यूम ही इंस्टेंस स्टोरेज चाहिए, है ना। वो हम लोग आगे ड्राइव्स में जब जाएंगे तो सीखेंगे क्या क्या वॉल्यूम से अवेलेबल। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज का इंस्टेंस जब बनाएंगे तो बूट वॉल्यूम मेरा EBS ही बनेगा।
तो दैट इज कॉल्ड रूट और बूट वॉल्यूम। वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा अकाउंट जो है मैं लॉगिन कर रहा हूँ AWS अकाउंट में, और फटाफट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं EBS वॉल्यूम क्रिएट, किस तरह से अटैच करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो प्रैक्टिकल काफ़ी इजी है और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे चल के ये आपको करना पड़ेगा। जब आप काम करोगे इसके ऊपर तो ये आपको करना है, मतलब यूज़ करना, जानना। How to create and how to attach ना सर? हाँ, How to create EBS and how to attach EBS. Amazon ये क्या हो गया? सर इंटरनेट इसी तरह मेरा भी चल रहा है। Frequent कम हो गया। सर ऐसा मेरा भी कर रहा था सर, EFS बनाए थे क्रिएट, लास्ट में ऐसे नेट चल पड़ा। तो सब बाकी सब ठीक ही चल रहा है, सिर्फ AWS में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैं कोई और रीजन में ओपन करता हूँ इसको। मैं एक काम करता हूँ AWS amazon.com से डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ और फिर यहाँ से हम लोग रीजन चूज करेंगे कौन सा रीजन में करना है। ओके, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट इसी में जा रहा है। Amazon का सर्वर स्लो है, सर्वर डाउन हो सकता है। सर Amazon डेटा सेंटर में इतना सारा स्टोरेज मेंटेन सर, ये सिस्टम खराब कर दिया। jetdemo.demo। चलो तो আমরা স্টার্ট করছি প্র্যাকটিক্যাল। Now first practical is how to create a EC2 instance। हैं? क्या? How to create EC2 instance बनाना पड़ेगा ना मुझे, अदरवाइज किससे करेंगे? तो काफी लोग नया लोग है ना यहाँ पे, जो EC2 इंस्टेंस नहीं जानता बनाने। सो मैं EC2 पे चलता हूँ और सबसे पहले एक नॉर्मल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं विदाउट बिलिंग वाला, पैसा नहीं लगे। तो आप लोगों का मेरा जो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन सेलेक्टेड है यहाँ पे, आप चाहो तो रीजन चेंज भी कर सकते हो। नॉर्थ वर्जीनिया में रहने दीजिए। सर आप इसी में रहने दीजिए। सर ये फ्री वाला एक फ्री टायर के लिए है, जो फ्री टायर नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे और भी रीजन है, नहीं दिखेगा। तो मेरा यहाँ पे लॉन्च स्टेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे मेरा नाम हो गया इंस्टेंस का माई सर्वर, और यहाँ पे मैं एक विंडोज का सर्वर लेता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 2025 बेस फ्री टायर एलिजिबल। अब इसमें आदमी देख करके धोखा खा जाता है कि फ्री में मिलेगा, है ना। नीचे देखता नहीं है कि यहाँ पे फ्री लिखा नहीं है, तो बना लेता है, उसके बाद आता है बिलिंग आ जाता है ना, जो आ रहा है तुम लोग के साथ हो रहा है। यहाँ पे भी देखो कि फ्री लिखा है या नहीं, यहाँ पे लिखा है फ्री कहीं पे, तो मत लो, इसको हटा दो, कोई और ओएस लो। सर कहीं कहीं फ्री वाला जो सपोर्ट नहीं करता है सर। देखो हमारा ऐसा कुछ प्रैक्टिकल है नहीं जो सपोर्ट नहीं करेगा। सर हम दिखा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल किए, हम दिखा रहे हैं। तुम कोड लिया नहीं किया, बोल रहे थे, कोड लिया बोलते रहे कोर। यहाँ पे दो है ना, देखो यहाँ पे एक बेस है एक कोर बेस है। तो
तो कोर बेस मतलब क्या होता है? CLI सर। आपको सिर्फ CLI मिलेगा, कमांड लाइन, जैसे ब्लैक वाला स्क्रीन खुल जाएगा और कुछ नहीं आएगा। सर्वर तो नॉर्मल विंडोज सर्वर आप लोग पढ़े हो ना, सर्वर में दो तरह का फ्लेवर है, एक नॉर्मल ग्राफिकल है और एक आपका कोर है। तो कोर लोगे तो क्या होगा ना, सिर्फ पावर सेल जैसा खुलता है नॉर्मल विंडोज का, ऐसा वाला कमांड ये वाला ऐसा खुल जाएगा और कुछ नहीं आएगा। और जो फ्री नहीं है वो वाले ले रहे हैं तो उसमें तो ये तो फ्री है। यहाँ पे देखो मैं लिया ना बेस, बिल उठ जा रहा है पूरा। नहीं उठेगा मेरा बिल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेस। तुम्हारा 1 रुपये तो बिल उठा, मेरा 80 रुपये बिल उठा। $1 एग्जाम ইয়ারের পাঠিয়ে দিয়েছি। हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? শুনুন बेस दादा बोले दियो उधर। আরে দূর বেস बेस क्या लिखा है? ঠিক আছে একটু টাকা बेस मतलब होता है ग्राफिकल मिलेगा। ঝামেলা শেষ। अगर कोर लिखा रहेगा तो ग्राफिकल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्री टायर एलिजिबल। नीचे में लिखा है क्या? फ्री टायर एलिजिबल। ठीक है सर, पॉज कर लीजिए सर। लिखा है फ्री टायर एलिजिबल नीचे में भी, वही को उसी को लेना है। फ्री टायर नीचे में नहीं रहेगा तो आपका झूठ मूठ का पैसा आएगा। सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर का सुन लेते हैं। पॉज कर लीजिए सर। এক্সাম ইয়ারের পাঠিয়ে দিয়েছি 3টে ব্যাচে 385টা 25-26 তারিখ দেবে। লিখে দিয়েছো তো বস? আর হচ্ছে বাকিটা 17-18 দেবে। আর 373-এর একটা মেয়ে আর 376-এর একটা ছেলে, এই দুটো আলাদা করে 25-26 দেবে। ডেটটা করা আছে, কালার করা আছে, ঠিক আছে। 2 নম্বর হচ্ছে 391 ব্যাচটা ইয়েতে পাঠিয়ে দিই। বুঝতে হবে তো, আপনাকে পুরো লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছি কারা বুঝতে কারা হবে, আদারওয়াইজ এই মারতে হবে। আদারওয়াইজই বলা যখনই আসছি তখনই আপনি কিছু না কিছু করছেন, না কি করবো? আমার কোনো কাজ নেই, তুমি বলছো কিছু করছো। এই হলো আপনার 2 নম্বর কাজ। আর ওই সার্টিফিকেটের মার্কশিটটা এলে পাঠান, এটা হচ্ছে 3 নম্বর কাজ। চলুন এখনই বসবো, চলুন এখন ক্লাস নিয়ে এরপরে আবার একটা ব্যাচ হচ্ছে, এই করে করে আপনি গল্প দিন। ঠিক अरे আছে एग्जाम है 17-18 को, 17-18 को एग्जाम है सेंटर में और 25-26 को एग्जाम है। तो जिन लोगों का बैकलॉग आया है, फेल नहीं बोलेंगे, बैकलॉग ही बोलेंगे, तो वो लोग उस सब्जेक्ट में एग्जाम दे दो इस बार। हम लोग का छुट्टी ना सर। अरे एक ही दिन एग्जाम है। कितना क्वेश्चन? तो आपने तो बोले 17, 18, 25 पास हो गया सर। तो एक लोग एक ही दिन एग्जाम देगा ना। तो सर यही मासे ही तो हाँ, सर डिफॉल्ट क्रिएट अ न्यू पेयर। हाँ मैं एक पेयर की जनरेट करता हूँ। हेलो देख लो कैसे बनाते हैं EC2 इंस्टेंस विंडोज का। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ KK, एक KRP जनरेट होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, और क्रिएट कर दिया। एक KK बोल के आपका की डाउनलोड हो गया। सर डॉट अभी- पीपीके में किए क्या? हाँ डॉट पीपीके में किए किसी हाँ PPK विंडोज बना रहे हैं ना, PPK में किया। अभी नेटवर्क सेटिंग्स में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये VPC में क्रिएट हो रहा है, सबनेट में क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? नो प्रेफरेंस लिखा हुआ है। नो प्रेफरेंस लिखा हुआ है कि आप खुद प्रेफर नहीं कर रहे हो कि कौन सा एजेंट में मेरा इंस्टेंस बनेगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, कंपनी क्या बोला? कंपनी बोला कि मेरा जो इंस्टेंस बनेगा वो किस एबिलिटी जोन में बनना चाहिए? 1C। तो रीजन हुआ वर्जीनिया। रीजन तो दोनों का ही वर्जीनिया रहेगा। तो ये वर्जीनिया तो है यहाँ पे, ये तो है। हाँ सर देख चुके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रीड करना पड़ेगा। देन सबनेट में आपको यहाँ पे 1C को चूज करना पड़ेगा। 1C कहाँ पे लिखा रहेगा? यहाँ पे एबिलिटी जोन के अंदर। यहाँ पे 1A लिखा हुआ है, यहाँ पे 1A लिखा हुआ है, यहाँ पे 1B लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1C। ठीक है, क्लियर? तो 1C को मैं चूज कर लिया। ऑटो असाइन IP मैं एनेबल रखूंगा। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा जिसमें RDP प्रोटोकॉल को अलाउ किया जाएगा, जिसे मैं रिमोट एक्सेस कर पाऊँ सिस्टम को। बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को देखना है मेन क्या लिखा है, स्टोरेज। तो मेरे लिए कितना GB का स्टोरेज क्रिएट हो रहा है? 30 GB है ना। और यहाँ पे लिखा है GP2 जनरल पर्पस 2। और ये किस तरह का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है? EBS क्रिएट हो रहा है। आप अगर देखना चाहते हो तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे एडवांस में तो आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरह का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। EBS जनरल पर्पस SSD, ठीक है। और ये वॉल्यूम टाइप में है, टाइप में। हाँ ये अब दिखा रहे हैं। हाँ है ना, 30 GB का SSD क्रिएट हो रहा है। ये फ्री टायर है, इसमें पैसा आपका नहीं लगेगा। 30 GB तक कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा लोगे तो
ऐसा लगेगा। और ये किस तरह का वॉल्यूम है? रूट वॉल्यूम किसको बोलते हैं? हाँ, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये वॉल्यूम के अंदर इस विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये आपका सी ड्राइव है 30 GB का। क्लियर? सब कुछ देख लिया, बाकी हमको कुछ नहीं देखना। मैं लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस। ये इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। आप इंस्टेंस में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपका माई सर्वर बनाए थे, ये इंस्टेंस का आईडी है, ये T2 माइक्रो में क्रिएट हुआ है। और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे AZ मिलेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कौन सा AZ में मेरा EC2 इंस्टेंस। मैं ये चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि एवरीडे जोन के अंदर मैं जब क्रिएट कर रहा हूँ इंस्टेंस, तो मुझे EBS जब क्रिएट करेंगे तो उसी एवरीडे जोन में क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग इन दिस पोर्शन। तो ध्यान से देखो और सुनो, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, अभी बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, इंस्टेंस क्रिएट हो गया विंडोज प्लेटफॉर्म में। अगर आप इसको चेक करोगे ना तो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है? इस डिटेल्स दिख रहा है? यहाँ पे अलग अलग टैब है, जिसमें एक टैब यहाँ पे क्या लिखा है? स्टोरेज। तो स्टोरेज में आपको दिखेगा कि क्या स्टोरेज ये क्रिएट कर रहा है। EBS दिख रहा है? ये स्टोरेज 30 GB का बन रहा है, वॉल्यूम बना हुआ है, और ये इन यूज है और ये अटैच है। अभी आप और डिटेल्स में जाओगे, प्रेफरेंस में दिया मतलब उसका ये एबिलिटी जोन का। हाँ, एबिलिटी जोन देखना है। एबिलिटी जोन देखने के लिए आपको ना थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे, इससे नीचे आना है। ठीक है? हाँ सर। लेफ्ट वाले को नीचे करना है, जिसमें आपका EBS का अलग से एक टैब ही रहेगा। क्या रहेगा? टैब, ऑप्शन ही रहेगा EBS। और EBS के अंदर आपको वॉल्यूम में जाना है, जहाँ पे आपका 30 GB का वॉल्यूम दिखेगा। दिख रहा है? हाँ, 30 GB का वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। देखो, और ये कहाँ पे बना है? ऑटोमेटिक 1C में बना है, क्योंकि इसमें मेरा OS है, जिसको सेम AZ में बनाना पड़ेगा। क्लियर? आप इस सिस्टम को अगर ऑन करना चाहते हो तो आप इंस्टेंस पे वापस आ जाओ। इंस्टेंस, ये सिस्टम को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? RDP में जाएंगे। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं सेम प्रोसेस। ये मेरा RDP डाउनलोड हो गया। अभी पासवर्ड जनरेट कराना है, गेट पासवर्ड। प्राइवेट की मैं डाउनलोड किया था, उस प्राइवेट की को यहाँ से चूज करना है। KK बोलकर नाम दिए थे प्राइवेट की को। मैं फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज ये पहले भी कर चुके हैं। और इसको पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे और यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करेंगे। अभी जो मैं डाउनलोड किया उस RDP को ओपन करेंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा आ गया पासवर्ड देने का ऑप्शन। आपका सिस्टम एक्सेस हो जाएगा। नॉर्मल, सिंपल, आसान है। बट यहाँ पे मुझे एक ही वॉल्यूम दिखेगा, वो दिखेगा C ड्राइव, जो 30 GB का हो। देखो, ये मशीन ऑन हो रहा है। क्लियर? सो ये विंडोज सर्वर 2022 है। ये ग्राफिकल है क्योंकि मैं बेस सेलेक्ट किया। अगर मैं कोर बेस करता तो ग्राफिकल मेरे को नहीं मिलता। ठीक है? क्लियर है सबके लिए? नॉर्मल ये इसी पे इंस्टेंस पर बनाए। अब चलते हैं कि EBS वॉल्यूम कैसे बनाएंगे। मैं रूट वॉल्यूम नहीं बनाने वाला, मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्रिएट करने वाला हूँ। एक्सटर्नल स्टोरेज बनाना चाहता हूँ और इस सर्वर में देना चाहता हूँ। मैं वापस दिखा रहा हूँ, ये सर्वर है। ये सर्वर का नॉर्मल आप अगर देखते हो, इसमें एक ड्राइव आपको दिखेगा। मैं इस कंप्यूटर के अंदर जा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया है ना? ये आपका कंप्यूटर है, दिस कंप्यूटर। इसमें आपको एक ही ड्राइव दिखेगा यहाँ पे, एंड दैट इज C ड्राइव 30 GB का जो बनाए। ये भी सर लोगो विंडोज का। हेलो, देखो, अब तो लोगो विंडोज का ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वही चल रहा है। हाँ, विंडोज का लोगो यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखो, क्योंकि ये आपका रूट वॉल्यूम है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहीं से मशीन चल रहा है। तो 30 GB इसीलिए हम लोग लिए थे। आप अगर चाहो तो डिस्क मैनेजमेंट भी ओपन करके देख सकते हो।
डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है ना, mgmt.msc लिख करके मैं डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ एक बार में, जहाँ पे आपको डिस्क का सारा ऑप्शन आ जाएगा कि हार्ड डिस्क इसमें कितना सारा ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है डिस्क 0 जो कितना जीबी का है 30 GB, और ये प्राइमरी पार्टीशन है ना, इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि एक और हार्ड डिस्क इसमें हो या यहाँ पे मैं डेटा रख सकता हूँ। मैं उसके लिए क्या बनाने वाला हूँ, EBS वॉल्यूम। कितना जीबी का, 10 GB का। मेरा अपना पैसा नहीं है, 10 GB। ये 30 GB डिफॉल्टली मिल गया एक बार, वहाँ क्या बना होगा? मेरा तो रिक्वायरमेंट 10 GB का ही था। ठीक है, इसमें लग रहा है ऐड का ऑप्शन मिलेगा लग रहा है। हाँ, अभी कैसे ऐड करेंगे, वापस आप AWS अकाउंट में चले आओ। ये आपका क्वेश्चन बदल कहाँ पे जाना है, EBS में जाना है। सर रुकिए, इस रास्ता से जाइए। हाउ टू क्रिएट EBS वॉल्यूम, ये आप क्वेश्चन है। इसी पे हम लोग बना लिया। हाउ टू क्रिएट EBS वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट एक्सटर्नल स्टोरेज एज EBS वॉल्यूम। तो जैसे हम लोग ये VMware में और Hyper-V में हार्ड डिस्क ऐड करते थे, इसमें ऐसे यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, लिख लिए सब। जी सर। हाँ, क्वेश्चन लिख लिया, अब आंसर में चलते हैं। हाउ टू क्रिएट EBS वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज मैं यार बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे मेरा इंस्टेंस है माई सर्वर, और इसके अंदर मैं अगर स्टोरेज में जाता हूँ तो स्टोरेज में मेरा 30 GB का जो स्टोरेज है वो दिखता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। यस सर। और ये आप एकदम लास्ट में जब आओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा डिलीट ऑन टर्मिनेशन। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये यस रहता है। यहाँ चेंजिंग मतलब आप अगर EC2 इंस्टेंस को डिलीट करते हो तो ये वॉल्यूम भी क्या होगा, 30 GB का डिलीट हो जाएगा। ये ऑप्शन में यस है, मैं इसको नो भी कर सकता था। नो करेंगे तो क्या होगा, नहीं डिलीट, मतलब वो इंस्टेंस डिलीट होने के बाद भी ये रहेगा। सर बिलिंग होगा सर, कर देंगे हाँ, फिर भी ये स्टिल रहेगा। अगर आप नो कर दोगे इसको, ये ऑप्शन आप यस नो ऑप्शन आता है जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो ना, वहाँ पे मैं दिखाया नहीं आपको ये ऑप्शन, वो आता है एडवांस में ही आता है। सर वो बाय डिफॉल्ट यस में ही बाय डिफॉल्ट यस रहता है। यस इसलिए रहता है क्योंकि EC2 इंस्टेंस अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो OS का वॉल्यूम भी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरा डिलीट नहीं होगा तो नो कर दो, तो क्या होगा, आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, ये रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो, इसको अगर हम डिलीट नहीं करते तो बिल आना चाहिए। हाँ, डिलीट नहीं करोगे तो कुछ वो 750 आवर्स तक तो फ्री रहता है, फ्री हमारा अकाउंट। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हो तो फिर आपका बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अभी चलते हैं वॉल्यूम्स। कहाँ पे जाना है, EBS में। EBS के अंदर क्या मिलेगा हमको, वॉल्यूम। ठीक है, क्यों जा रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम EBS में। सो इसमें जाना है और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन दिया है। क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम। ठीक है, लिखे ना आता थोड़ा मोड़े थक दो। क्रिएट वॉल्यूम में जाना है। अब ये पूछा है किस तरह का वॉल्यूम बनाना है। सर वो जो टाइप्स दिखा रहे थे वो, हाँ, टाइप्स में अभी बताया नहीं आपको। यहाँ पे देखो टाइप्स में बहुत सारा टाइप्स है ना? तो बाय डिफॉल्ट मैं थोड़ा GP3 रहेगा, मैं इसको GP2 कर लेता हूँ कि थोड़ा कम पैसा आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है साफ साफ, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? हाँ, क्या मतलब है इसका? सर उसको इंस्टेंस उस इंस्टेंस से अटैच कीजिए जो सेम अवेलेबिलिटी जोन में है। हाँ, तो इस EBS को अगर आप बना रहे हो तो इस EBS को उसी AZ में आप क्रिएट करो जिस AZ में आपका इंस्टेंस है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर आपका इंस्टेंस 1C में है तो EBS को आपको कहाँ बनाना चाहिए, 1C में ही। वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, साइज ये बाय डिफॉल्ट 100 GB का लेगा, तो 100 GB आपको नहीं करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाओगे दिखाएगा आपको कितना बिलिंग आएगा। तो मैं इसको 10 GB कर दिया। ये आपका IOPS है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, है ना। ये लगभग अच्छा, हाँ, ये 100 दिखा रहा है IOPS। 3000 तक जा सकता है।
बाय डिफॉल्ट इसका एबिलिटी जोन क्या दिखा रहा है? 1A। अभी मैं क्रिएट कर दूंगा तो कहाँ पे बनेगा? 1A में बन जाएगा। 1A। 1C में करना होगा, है ना? तो हम लोग क्या करना है? 1C। तो यहाँ से आप चूज कर लो 1C। ओके, स्नैपशॉट का भी ऑप्शन ही है, ऑप्शनल है। स्नैपशॉट क्या होता है हम लोग बाद में सीखेंगे, उसका भी हम लोगों का टॉपिक है। उसके बाद आप क्रिएट कर लो, क्रिएट वॉल्यूम। आपका एक वॉल्यूम यहाँ पे 10 GB का दिख जाएगा। सर ये बन गया ना, ये रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये आपका आ गया है ना। ये कौन सा जोन में, एबिलिटी जोन में है? 1C में। GP2। लेकिन नीचे वाला दिखा रहा है इन यूज और ये दिखा रहा है अवेलेबल। इसका दोनों का मतलब क्या है कोई बताएगा? हाँ, 30 GB वाला जो था वॉल्यूम वो दिखा रहा है क्या? इन यूज वॉल्यूम स्टेटमेंट। और इसमें क्या दिखा रहा है? अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि ये अटैच हो चुका है नीचे वाला, और ऊपर वाला अवेलेबल है अटैच करने के लिए, ये रेडी है। आप इसको अगर चाहो तो किसी भी इसी इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हो जो 1C में है इंस्टेंस, जिसको 1C में बना हुआ है ना। अब इसको अटैच कैसे करेंगे? जब तक अटैच नहीं करेंगे तब तक ये आपका सिस्टम में दिखेगा नहीं। दिख रहा है क्या? नहीं आया अभी तक। अभी आ जाएगा यहाँ पे, जब अटैच करोगे यहाँ पे दिख जाएगा। चलो अटैच करते हैं ना। हाउ टू अटैच द वॉल्यूम। वॉल्यूम तो क्रिएट कर लिया, अब अटैच कैसे करेंगे इसी के वो सीखेंगे। तो जिस वॉल्यूम को अटैच करना है उस वॉल्यूम में आप क्लिक करो, चेक करो, देन आपको कहाँ जाना है? एक्शन में, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है अटैच वॉल्यूम। ওই তো এটাই করেছি, কিচ্ছু করিনি। এই ভলিউমটাকে চেক করেছি, যেটাকে অ্যাটাচ করব 10 GB। দেন অ্যাকশনে গেলাম, তারপরে আমি কি করলাম? অ্যাটাচ ভলিউম। ঠিক আছে, অ্যাটাচ ভলিউম। अटैच वॉल्यूम में क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होगा, वॉल्यूम आईडी, एबिलिटी जोन लिखा होगा, और ये लिखा होगा इंस्टेंस। इंस्टेंस को यहाँ से आपको चूज करना है, किस इंस्टेंस से अटैच करना है। हो सकता है कि मल्टीपल इंस्टेंस हो यहाँ। तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टेंस है वो एक ही में बनाया हूँ, जो रनिंग स्टेटस में है, जिसका नाम है माई सर्वर, और उसका इंस्टेंस आईडी भी दिख रहा है। आप इस इंस्टेंस आईडी को यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करो। कर लिया सिलेक्ट। अभी डिवाइस नेम क्या होगा, मतलब वो जब अटैच होगा विंडोज मशीन में तो किस नाम से अटैच होगा, उसका नाम भी दिखना चाहिए ना वहाँ पे, किस नाम से अटैच होगा। तो ये AWS का जो बैक एंड में स्टोरेज का सर्विस चलता है वो लिनक्स बेस्ड होता है, इसलिए वहाँ पे SDA SVDA इस तरह से लिखा होता है। अगर रूट वॉल्यूम होता तो ये SDA होता, नॉन रूट वॉल्यूम के लिए ये इस तरह का नाम आएगा। अब कोई भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लो, रिकमेंडेड फॉर वॉल्यूम। मैं ले लिया XBDV, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दिया? अटैच। बस इतना ही करना था। अटैच करते ही आपका ये वॉल्यूम यहाँ पे इन यूज दिखेगा। क्या दिखेगा? इन यूज दिख रहा है, इन यूज। हाँ, अभी अगर आप सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे एक डिस्क आपको एक्स्ट्रा दिखेगा जो नहीं दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 10 GB। बट इसको आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपको क्या दिखेगा? ऑफलाइन दिख रहा है। इसको ऑनलाइन कर। बाकी हम लोग सेम करते हैं जैसे सिस्टम में करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ऑनलाइन करेंगे, है ना। अभी दिखा रहा है नॉट इनिशिएटेड। अब क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे डिस्क 1। ओके, हो गया। अब ये ऑनलाइन भी दिख रहा है, बेसिक भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉल्यूम दिख रहा है, C ड्राइव। क्यों? फॉर्मेट করতে হবে স্যার, यूज क्योंकि করার ये জন্য रॉ फॉर्मेट फॉर्मेट में है। क्या लिखे थे EBS का फीचर भी लिखे थे, ये रॉ फॉर्मेट में होता है, अनफॉर्मेट में होता है। इसको आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा यूज करके। तो आसान है, राइट क्लिक करेंगे। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं काफी। नेम सिंपल वॉल्यूम और एक NTFS वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे फटाफट। D ड्राइव नाम होगा, है ना। D ड्राइव आप चूज भी कर सकते हो, कोई भी ड्राइव। मैं Z ड्राइव कर दिया तो किस नाम से क्रिएट होगा? Z ड्राइव से। ठीक है, फिनिश कर दो।
हो गया, आसान है प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप पहले देखिए किए तारपर जैसा स्टेप है, जैसे लोग नेक्स्ट 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 फिनिश। सबसे इजी बता दिया सर। ठीक है, हो गया कंप्लीट प्रैक्टिकल। ये आपका डी ड्राइव आ गया, सॉरी डी जेड ड्राइव आ गया। कितना जीबी का दिख रहा है? लगभग 10 जीबी का दिख रहा है। आप इसको यूज करोगे, यहाँ पे जो भी डेटा रखोगे वो उसी में जाएगा, उसी वॉल्यूम में जाएगा। 9.8 नहीं आएगा बिलिंग, क्यों आएगा? आप बना के छोड़ दोगे तो बिलिंग आएगा। मैं तो बनाया और डिलीट कर दिया। हो गया। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे? पहले डिटैच करना होगा ना। इसको पहले डिटैच करोगे, या फिर डिटैच ना भी करो, आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो। कर सकते हैं क्या डिलीट? हाँ, क्या करना पड़ेगा? यस, तो इसको डिटैच कर दो। अब डिटैच कर दोगे तो ये वॉल्यूम इधर से हट जाएगा। हवा हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको। बट ये आपका AWS में रह गया है। इस वॉल्यूम को आप किसी और मशीन के साथ भी अटैच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेम टाइम में नहीं होगा। नहीं, सेम टाइम एट अ टाइम नहीं होगा। टाइम नहीं। अभी भी नहीं आ रहा डिलीट का ऑप्शन। इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, देन डिलीट करो। यहाँ पे क्या लिखो? डिलीट। सो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया हम लोगों को। अब सिर्फ डिलीट करना है। इसको डिलीट करने का जरूरत नहीं, ये तो हम जब इसको इंस्टेंस को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे येस किया हुआ था, है ना। तो ये एक्शन में गए, सॉरी इंस्टेंस स्टेट में गए और टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे, और ये दिखेगा शटिंग डाउन। इसके बाद कुछ देर बाद ये टर्मिनेटेड दिखेगा, और रिमोट एक्सेस भी चला गया बिकॉज सिस्टम भी बंद कर दिए। और यहाँ पे वॉल्यूम में यहाँ पे आप अगर रिफ्रेश करोगे तो ये आपको कुछ देर बाद यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप की पेयर। हाँ, वो सब तो करना ही है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। की पेयर एक क्रिएट हुआ था, उसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट बेस्ट बाहर बैठा हो गया, क्लास हो गया। की पेयर हट गया। सिक्योरिटी ग्रुप भी एक बना होगा ऑटोमेटिकली, उसको भी हटा देते हैं। तो ये सब डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट नहीं करोगे तो आपका हो सकता है कि बिलिंग हो। डिफॉल्ट वाले को डिलीट नहीं करना है, डिफॉल्ट जो रहेगा रहेगा। सर इसमें दिखा है तो सबनेट कितना रहेगा? हो गया, तो सबनेट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। अब EC2 ग्लोबल में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे सब दिखेगा, सबनेट्स दिखेगा, सब सबनेट 00 है। आएगा, सब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? 17 रीजन है, 55 सबनेट है। एक इंस्टेंस मेरा यूज हो रहा है बिकॉज मैं इसको डिलीट किया हूँ, थोड़ा देर बाद ये इसका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, डन। सर इसका स्टेटस चेंज होने में बहुत समय लेता है। नहीं, वापस लॉग आउट करो, हो जाएगा। ओके, सो क्लोज करते हैं सेशन। बाहर में एक बैच बैठा है।